Hey everyone, welcome back to Chemical Serendipity. So as you can see that these are the answers of your homework that was given to you. So जो भी अभी देख रहे हैं जिन्होंने वो नहीं देखा है questions, go and check it out the questions, solve those questions and then only come to this, that is the answers. So these are the answers of your questions that are based on the valence bond theory, where I had given to you these complexes and values of magnetic moment. All right, and क्या करना था तुमको उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी. हाइब्रिडाइजेशन निकल गई तो सब निकल गया कि वो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड. ऑल राइट, so these are the answers. So first of all, take the screenshot, then I am going to continue this lecture. All right, so these were your complexes. So see, the couple of questions, they were D2sp3, that means inner orbital complexes, octahedral geometry. Then the couple of questions were sp3d2, octahedral geometry, but the d orbitals are outer orbitals. What is the contribution of d orbitals? D z square and dx square y square. These are the questions which were sp3 hybridization, and these were dsp2, that means these are tetrahedral and these are square planar. And there were two other examples. One is having hybridization sp. Sp means the geometry is linear 180 degree, and the another one was sp3, that is tetrahedral complex. So ये तुमको क्वेश्चन आगे भी बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज इसके बाद हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, एंड इन दैट थ्योरी, आफ्टर डूइंग दैट थ्योरी, आपको वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट एक कॉम्प्लेक्स को देख के आप बता पाओगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या नेचर है, क्या लिगेंड का नेचर है, और लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है तो उसका रीज़न क्या है. दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. So before that, I had already told you that I'm going to start with the how to find the coordination number and oxidation state of a particular complex. All right, and so let's start with that basic, that how to calculate the oxidation state and the coordination number. So let us start this with an example. So let us say your example is metal and 6 ligand attached to metal, and something, let us say some halide ion is there. all right, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं. So these two ligands are projected toward you. This is the metal in the center. There are two ligands which are toward you and two ligands which are away from you. all right, and there is one ligand which is above the plane and one ligand which is below the plane. So this is your octahedral, and अगर ये x मान लो कोई halide है, this will be x minus, so this complex will get a plus charge. all right, तो देखो ये तो तुमको पता होगा ना, कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ही बेसिक सा है, फिर भी देख लेते हैं. तो देखो जो तुम्हारी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, दिस वन, इसको बोला जाता है आयोनाइजेबल स्फीयर या आयोनाइजेशन स्फीयर, और इसको बोल दिया जाता है काउंटर आयन. ठीक बात. ये सारे हमारे क्या हैं? लिगेंड्स, जिससे हमें क्या पता चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की. तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड. अब थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, ऐसा नहीं बोला नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल, ऐसा बोला नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. जैसे यहाँ पे देख के तो बहुत इजीली समझ पा रहे हो ना. अब देखो
यहाँ पे देख के तुमको क्या पता चल रहा है कि 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फटाफट बोल दोगे 6। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक लिगेंड में एक ही एटम हो जो मेटल के साथ बाइंड कर रहा है। एक लिगेंड में एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं ना, डोनर एटम्स जो मेटल के साथ बाइंड कर रहे हो। तो उस केस में आप एक नंबर ऑफ लिगेंड्स को देख के कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलोगे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू द मेटल आयन, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे लिगेंड के, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि ऐसा क्यों बोला। ऑलराइट, सो क्या बोला है? नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड टू द मेटल आयन, डोनर एटम ऑफ व्हाट? ऑफ अ लिगेंड। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन नंबर। सो लेट अस से यहाँ पे जो लिगेंड है, अब यहाँ पे मान लो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे इस कॉम्प्लेक्स का बोलूँगा? अगर मैं मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ FeNH3 6+, तब आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया का वो बाइंड करेगा आपके मेटल आयन से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है, इजी है। बट आगे जब और तरीके के लिगेंड पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ इसको देख के नहीं बोलना है कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम्हें लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे बाइंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बोलना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये बहुत ही बेसिक है, आई नो, बट फिर भी जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए था। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट समझे हम? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है? अब सिंपल वाली तो तुम्हें आ ही गई होंगी, अदरवाइज वो क्वेश्चन ना हो पाते। जैसे FeNH3 6Cl2 ऐसा दे दिया, तो बोलेगा कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं कभी कभी, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो इसका पूछ लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पता ही है आपको ये बात कि जिसका नहीं पता उसको क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम ये करना कि इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग कर लेना काउंटर आयन से। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग करेंगे तो क्या होगा बोलो? NH3 6, काउंटर आयन कितने निकलेंगे? 2X नेगेटिव, मतलब 2Cl नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज जाएगा? +2। ओके, अब जिसका नहीं पता उसको X मान लिया। कितने प्लस? लिगेंड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? 6 लिगेंड है हमारे पास। कैसे? यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल, मतलब चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, और कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज +2। तो क्या आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अच्छा, अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझो क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मेटल आयन या एक इन जनरल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज कर रहा है या गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है to form bond with the other moiety, that is called oxidation state. If it is positive, that means it is losing the electron. तभी तो तुम Fe+2 हो गया तो तुम क्या करते थे? S वाले से निकाल देते थे ना, अगर 3D ट्रांजिशन मेटल आयन का हो तो ऐसे कर देते थे जब क्वेश्चन किए थे। तो इतना 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये लूज करेगा, देन कॉम्प्लेक्स बनाना हम शुरू करते थे, है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर तब तक नहीं बता सकते हो जब तक तुम्हें लिगेंड का पता ना हो। पहली बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कॉम्प्लेक्स में नंबर को देख के कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलना है। तुम्हें उस लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी बाइंडिंग साइट उसको बाइंड कर रही है, तभी तुम बता सकते हो। सिमिलरली जब तक तुम्हें लिगेंड का नेचर नहीं पता तब तक तुम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते ना। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि ये न्यूट्रल है तब तक तुम कैसे बोलोगे कि इसकी कंट्रीब्यूशन 0 है। सो दैट मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, and nature of ligand. Type in the sense what is the denticity of ligand. Denticity का मतलब क्या होता है कि कितने उसमें एटम हैं जो डोनर एटम की तरह एक्ट करेंगे और मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी. तो वी शुड know the denticity of the ligand, then only we can say or comment on the coordination number.
and we should know the nature of the ligand. Whether your ligand is neutral, then only we can say the oxidation state or the charge contribution is 0, and whether it is anionic. If it is anionic, then the charge carried by the ligand is -1, -2, -3, -4. Then only we can get an idea about it, right? So we should know about the type of the ligand and the nature of the ligand. So in this lecture we are going to study some of the ligands. So there are huge number of ligands in your coordination chemistry, but we are going to pick some of the ligands which are well known and well practiced, right? So those ligands I'm going to discuss with you today, so that कोई भी तुमको कॉम्प्लेक्स मिले तो तुम उसमें अच्छे से बता पाओ कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है और क्या. देखो ऐसा नहीं है कि इस पे क्वेश्चन आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ. क्वेश्चन आपका कोई भी आएगा आगे भी, जब तुम चैप्टर में, जैसे तुम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन करोगे तब भी हर क्वेश्चन में तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना ही चाहिए है. जैसे पहले बोला ना, दिस इज द बेस ऑफ योर बिल्डिंग, ऑलराइट. सिमिलरली आगे जब तुम आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, जिससे क्वेश्चन पक्का आता है, उसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए कैसा है आपका लिगेंड, क्या उसकी डेंसिटी है. तो बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी ऑलमोस्ट आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करते हो, उसके लिए ये दिस इज द बेसिक. यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. ठीक है, तो अब हम करते हैं. So let us start that how to find out the nature of the ligand and the type of the ligand. So we are going to do both the things simultaneously, alright. So I am going to start with the first one, that are called monodentate ligand. Monodentate ligand. Monodentate ligand अब नाम से क्लियर हो गया होगा ना. Monodentate ligand का मतलब क्या हुआ, जिसमें number of donor atom of ligand will be 1. तो इसमें पढ़ लेंगे हम अलग अलग टाइप से. जैसे पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रल. कौन कौन से हैं न्यूट्रल, मतलब उनका चार्ज कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0. ठीक है, तो अब देखेंगे. देखो ठीक है, बट देखो अब ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड है बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. आपने पहले भी देखे होंगे क्योंकि आप 11th से पढ़ते आ रहे हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो बहुत सारे नोन है, बट फिर भी हम उसको कवर करेंगे मोनोडेंटेट को भी. बट इसके बाद बाइडेंटिएट, ट्राइडेंटिएट, टेट्राडेंटिएट, देन सम आर एम्बीडेंटिएट, देन सम आर फ्लेक्सीडेंटिएट. तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक ओनली. सो फर्स्ट वन इज द मोनोडेंटिएट न्यूट्रल लिगेंड. तो देखते जाएंगे, फटाफट नोट करते जाएंगे. दिस इज वेरी सिंपल. क्या बोलते हो, एमोनिया. देन मान लो H को रिप्लेस कर देती हूँ एमीन से, मिथाइल से, तो क्या बोल दिया, मिथाइल अमीन. फिर मान लो C2H5 2NH, क्या बोल देंगे, डाया इथाइल अमीन. अगर मैं बोल दूँ C6H5N, क्या है ये बोलो, यही है ना. क्या बोलते हो, पिरिडीन. अच्छा ये क्यों लिखवा रही हूँ, इसके बारे में पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये क्या करता है, तुम्हारे केमिस्ट्री में जितने भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सबका क्या करता है, नामकरण, है ना. तो सबका एक प्रॉपर रूल्स होते हैं नेमिंग करने के. ऐसा नहीं आप कुछ भी नाम से उसको पुकार लोगे, हर एक का प्रॉपर एक नेम होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं. तो उसको हम देख लेंगे, कर लेंगे डिस्कस. आइसोमेरिज्म जब करेंगे तब पढ़ेंगे यहाँ पे. लेकिन हम लिगेंड्स की बात करें तो उन लिगेंड्स को कैसे लिखना है, कैसे एब्रिवेट करते हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं. तो जो न्यूट्रल लिगेंड है ना, उनमें कुछ भी सुफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाना, जो उनका नाम है वही लिखते जाना है, वही तुम वहाँ पे यूज़ करोगे. ठीक है, तो जैसे NH3 को एमोनिया, CH3NH2 को मिथाइलमीन, ऐसे, इसीलिए ये नेम लिख रही हूँ. ठीक बात. तो ये क्या हो गया, पिरिडीन. अच्छा इसको क्या बोले, PF3, क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस ट्राया फ्लोराइड. तो क्या बोल देंगे इसको, फॉस्फोरस ट्राया फ्लोराइड. उसके बाद जैसे ऊपर किया वैसे ही, अगर ऐसे बोल दो C2H5 2 या 3P, तो क्या बोल देंगे, ट्राया इथाइल फॉस्फीन. क्या बोल दिया, ट्राया इथाइल फॉस्फीन. और बोलो CH3CN, ये तो पता ही है, क्या बोलते हो, एसीटोनाइट्राइल. तो ये बेसिकली आपका सॉल्वेंट है, बट दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट and the density is what, 1 N. ऑलराइट. सो ये सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज
क्या होगा 0। अच्छा, और भी कुछ हैं जो जिनके नेम थोड़े से अलग हैं, जैसे CO क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। NO क्या बोलोगे, नाइट्रोसिल। NS क्या बोलोगे, थायो नाइट्रोसिल। H2O क्या बोल देते हैं, एक्वा। CS थायो कार्बोनिल। CO is carbonyl, CS is thiocarbonyl, NO is nitrosyl, NS is thionitrosyl. So all of them are monodentate ligand and are neutral. फटाफट से कर लेते हैं एनाइनिक। एनाइनिक लिगेंड में देखो, अब इसका नेमिंग कैसे है, इसके नेमिंग में आप एक सुफिक्स यूज करते हो O, सुफिक्स जो नेम के एंड में लगे, प्रीफिक्स जो नेम के स्टार्टिंग में लगे O। तो जैसे कोई भी हैलाइड आयन है, जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव, क्या बोलोगे, फ्लूरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, आइडो। मैं लिख नहीं रही हूँ इसको, इजी है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो NH2 नेगेटिव, एनाइनिक है ना, -1 चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, जैसे NH3 को बोलते थे अमीन, तो इसको बोलेंगे अमीडो। और देखो क्या हो सकते हैं, CH3COO नेगेटिव, क्या है ये, एसिटेट, तो क्या बोलेंगे, एसिटेटो। OH नेगेटिव, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। ये देखो HS नेगेटिव, इसको थोड़ा अलग है नाम, इसका नाम है मरसेप्टो, ध्यान देंगे। तो सब पे ही क्या है चार्ज, -1, तो एनाइनिक है, लेकिन डेंटिसिटी सबकी क्या है, 1, मोनोडेंटिएट। अब ये देखो जरा, CN नेगेटिव, क्या बोलते हो इसको, साइनो। लेकिन ये ऐसा भी दिखेगा कभी, NC नेगेटिव, क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। अब ये ऐसा क्यों, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर जो बाइंड करेगा तुम्हारा एटम वो कार्बन है तो साइनो, अगर जो मेटल के साथ बाइंड कर रहा है वो नाइट्रोजन है तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। ठीक बात, थोड़ा और डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे कि भाई इसमें तो 2 आपकी क्या है, डोनर साइट है, फिर हम इसको मोनोडेंटिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही एटम जो है वो डोनेट करेगा मेटल को, दोनों तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर है ये, एक मेटल को एक टाइम पे एक ही करेगा, तो C करे कार्बन करेगा तो साइनो, N करेगा तो आइसोसाइनो। SCN नेगेटिव, तो जैसे अगर S को हटा लूँ तो ये साइनो था, ये थायो लग गया, तो क्या बोलोगे, थायोसाइनेटो। अगर ऐसा हुआ NCS नेगेटिव, देखो ये इसमें S कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल के साथ, अगर N कोऑर्डिनेट करेगा तो इसको क्या बोल दोगे, आइसोथायोसाइनेटो। ये इसकी और इसकी बात करेंगे दोबारा हम, क्योंकि थोड़े अलग लग रहे हैं ना, इतने इजी नहीं लग रही है, क्या ही हो रहा है, कभी सल्फर कर रहा है, कभी नाइट्रोजन, तो इसको दोबारा करेंगे। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर N भी कर सकता है, S भी कर सकता है, लेकिन अगर S करेगा तो थायोसाइनेटो, N करेगा तो आइसोथायोसाइनेटो। नाम अभी तुम देख लो, तो सेम बात है ये दोनों क्या है, मोनोडेंटिएट लिगेंड। अगर ऐसा हो NO2 नेगेटिव तो क्या बोलते हो, नाइट्रो। पर अगर ऐसे दिख जाए ONO तो सेम बात नहीं है, पहले वो वाला एटम आएगा जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, N करेगा तो नाइट्रो, O कर रहा है तो नाइट्राइटो। ऐसा हो तो C2H5O नेगेटिव, क्या बोलोगे, इथॉक्सो। O लग रहा है ना सबके एंड में, तो ये तो वो वाले मोनोडेंटिएट लिगेंड हो गए जो आपके एनाइनिक है और चार्ज क्या है, -1। अब जिस पे -2 हो वो देखो, जैसे S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव क्या बोलोगे, थायो। O2 नेगेटिव क्या है ये, ऑक्सो। अब देखो 3 नेगेटिव वाले, जैसे N3 नेगेटिव, तीनों प्रोटॉन निकाल दिए अमोनिया से, तो 3 नेगेटिव, इसको बोला जाता है नाइट्राइडो। और कुछ रह गया, अच्छा एक देखो, एक और N3 नेगेटिव, समझो डिफरेंस, ये नाइट्रोजन 3 है, ऊपर चार्ज -1 है, ये N है 1 और ऊपर चार्ज क्या है, -3, तो नाइट्राइडो, एंड दिस इज अजीडो। सो दीज आर योर एनाइनिक लिगेंड विच आर मोनोडेंटिएट। अब पढ़ेंगे बाइडेंटिएट।
तो देखो बायडेंटेट बोलो, ट्राया, टेट्रा, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड में। पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब डेंटिसिटी क्या हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, 1 ना हो। तो पहला देख लो आप बायडेंटेट लिगेंड। तो बायडेंटेट लिगेंड में भी सेम जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल की बात कर ले। तो बायडेंटेट में न्यूट्रल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्या है? EN से उसको डिनोट करते हैं। क्या नाम है? इथिलीन डायामीन। क्या है? इथिलीन क्या हो गया? CH2 डायामीन क्या हुआ? NH2 तो कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइट है? 2, इसलिए डेंटिसिटी क्या है? 2। बट क्या है? न्यूट्रल, चार्ज क्या है? 0। इनकी जगह PH2 ग्रुप आ जाए तो उसको बोला जाता है डाइफोस, मतलब इथाइलिन डायाफॉस्फीन, मतलब CH2 PH2 कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइट? अगेन 2, डाइफोस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मिलेगी। DPY ये है 2 डैश डायापिरिडीन। कैसे बना, क्या होगा ये बोलो? पिरिडीन है 2, है ना, 2 डैश 1 डैश 2 डैश, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसको क्या बोल दिया? 2 डैश डायापिरिडीन। क्या है डेंटिसिटी? 2। फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। एक हो गया हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या हुआ? NH2 क्या डेंटिसिटी हो गई? 2। चार्ज क्या हुआ? 0। दिखता है शॉर्ट फॉर्म ओफिन। इसको बोला जाता है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, या इसको 110 ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन भी बोल देते हैं। ऐसा दिखने में है। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन 110 क्यों बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डोनेटिंग साइड कहाँ पे है? 1 और 10, तो 110 ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। क्या है बाइंडिंग? डेंटिसिटी क्या है? 2। चार्ज क्या है? 0। याद रखना चार्ज, ठीक है। एक ऐसा दिखता है डायर्स, शॉर्ट फॉर्म इज डायर्स। नाम है फिनाइलिन बिसमिथाइल एरसिन। एरसिन मतलब आर्सेनिक। कैसे है देखो, फिनाइल है, 2 आर्सेनिक मॉइटी है और उनके साथ क्या है? मिथाइल, इसलिए क्या बोला? बिस डाया मिथाइल। तो कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइट है? 2, इसलिए क्या है? बायडेंटेट। फॉर्मल चार्ज इज 0 बिकॉज दे आर न्यूट्रल। पढ़ लेते हैं एनाइनिक बायडेंटेट लिगेंड। ये हो गई न्यूट्रल। अब आ जाओ एनाइनिक बायडेंटेट लिगेंड। एनाइनिक में देखो सबसे पहला ऐसा कुछ दिखता है ACAC, नेम इज एसिटाइल एसीटोनेटो। एनाइनिक आ गए ना, तो O, एसिटाइल एसीटोनेटो, ACAC इज द शॉर्ट फॉर्म। कहाँ से बनेगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या है ये? एसिटाइल एसीटोन, ऐसे ग्रुप है ना। एसिटाइल एसीटोनेटो आयन कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा। कब? जब यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन कहाँ से लॉस होगा, तो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जाएगा ना पहले। तो 2 कार्बोनिल के बीच में ये प्रोटॉन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कहाँ से बाइंड कर सकता है? यहाँ से और यहाँ से। तो डेंटिसिटी क्या हुई? 2, लेकिन
क्या चार्ज है, तो ये ऐसे दिखेगा, एसिटाइल एसीटोनेट चार्ज क्या होगा, -1, याद रखेंगे एसिटाइल एसीटोनेट चार्ज इज -1, इट इज एनायनिक लिगेंड। नेक्स्ट देखो 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिनेटो आयन, क्यूनोलिन क्या हो गया, यही हो गया, और 8 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ से H+ जाएगा तभी आयन बनेगा ना, तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, बाइंडिंग साइड, तो डेंसिटी इज 2 बट चार्ज इज व्हाट, -1। नेक्स्ट इज ट्रोपोलोनेटो आयन। अब ये क्या आयन आ गया, नया सा ही नाम आ गया, ट्रोपोलोनेटो आयन। बनता है ट्रोपोलोन से, ट्रोपोलोन से, ट्रोपोलोन क्या होता है, 7 मेंबर्ड रिंग, ऐसे कार्बोनिल और यहाँ पे हाइड्रोक्सी, इसको बोला जाता है ट्रोपोलोन। यहाँ से H निकालो, क्या बन जाएगा, कौन सा जाएगा, ये वाला ना, O नेगेटिव, तो क्या बाइंडिंग साइट हो गई 2, इसको बोला जाता है ट्रोपोलोनेटो आयन। सो व्हाट इज द चार्ज, -1, एंड दिस इज अ बाइडेंटिएट लिगेंड। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट कुछ ऐसे दिखता है, DMG ऐसे दिखेगा, डायामिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो आयन, तो कहाँ से बनेगा ये आयन, डायामिथाइल ग्लाइऑक्साइम से। ग्लाइऑक्साइम क्या होता है वहां देख लेंगे, what is your glyoxime, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यही होता है ना, तो नेम क्या है, डायामिथाइल ग्लाइऑक्साइम, तो क्या हो जाएगा, डायामिथाइल ग्लाइऑक्साइम, यहां से प्रोटॉन निकलेगा तभी आयन बनेगा, क्या बनेगा, मान लो ये वाला निकल रहा है यहाँ से, तो O नेगेटिव, बट ध्यान से देखना बाइंडिंग साइट ये 2 नाइट्रोजन रहेंगे, ठीक है, जब भी तुम इसका कॉम्प्लेक्स देखोगे तो ये दोनों बाइंडिंग साइट, ऐसा मत समझ लेना ये 3 हो गए, नो, डेंसिटी इज 2 ओनली, बट ये जो आयन की वजह से इसने O नेगेटिव आया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, देखना जो आप कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, तो उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा दूसरे लिगेंड के साथ, बट द डेंसिटी इज 2 एंड द चार्ज इज -1, इसीलिए क्या है, DMG -1। तो ये तो हो गए एनायनिक जिसपे -1 चार्ज हो, अब एनायनिक जिसपे -2 हो, एग्जाम्पल इज ऑक्सलेटो, ऐसे कुछ दिखता है, OX2 नेगेटिव, ऑक्सलेटो आयन कहाँ से बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड से, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से 2 प्रोटॉन निकलेंगे, क्या बन जाएगा, so this is a bidentate ligand but the charge is 2-, ऑक्सलेटो आयन। एक देखो Gly-1, एक और, ये क्या है, दिस इज नॉट हैविंग चार्ज, -2, -1 इज देयर, ग्लाइसिन, तो इसको बोलते हैं ग्लायासिनेटो आयन, कहाँ से बनेगा, ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन क्या होता है, NH2CH2CO, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, ये एसिडिक, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो एक ये बाइंडिंग साइट और एक ये, तो बाइडेंटिएट लिगेंड बट द चार्ज इज -1। So these are all your bidentate ligand but are anionic. So what are the things to keep in your mind कि जो नेम है उसकी एंडिंग क्या होगी, O, so suffix is O, और तुमने ध्यान रखना है कौन सा बाइंडिंग, कितना बाइंडिंग साइट है और क्या चार्ज है, तभी तुम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब स्टार करके लिख लेंगे कुछ ऐसे लिगेंड जो दिखते बाइडेंटिएट हैं, एनायनिक बाइडेंटिएट लिगेंड, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज अ मोनोडेंटिएट लिगेंड, जैसे CO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। देखो एनायनिक लिगेंड है, पता चल रहा है 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन इसको देखो कैसे लिखते हो,
तो ऐसा लग रहा है ना कि ये बाइडेंटिएट लिगेंड है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये बाइडेंटिएट लिगेंड है, लेकिन ये एक्ट करते हैं एज अ मोनोडेंटिएट लिगेंड, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मेटल के साथ बाइंड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। पहला फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एंगल कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है अगर बाइंडिंग कुछ ऐसे हो। तो देखो कोई भी लिगेंड है, अगर उसकी डेंसिटी कितनी भी है, वो ज़रूरी नहीं है कि जितनी उसकी डेंसिटी है वो उतने से ही बाइंड करेगा मेटल से, बिकॉज कुछ ज्योमेट्रिक एक तरीके से सिलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर किसी ज्योमेट्री में रिपल्शन हो रही है तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो अलाउड नहीं होगी, वो फिजिबल नहीं होगी और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी ये एंगल बहुत कम है, जिसकी वजह से पहली बात तो क्या हो रही है, ये जो डोनेटिंग लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन। दूसरा यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से ये लिगेंड जो हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। बट अगर मैं बोलूँ इस मेटल का अगर मैं साइज बड़ा कर दूँ, देखो अगर ये मेटल का साइज इतना है और मान लो यही है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसे, लेकिन एक जगह मेटल का साइज छोटा है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो बोलो इसका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। कंपैरेटिवली अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको अप्रोच करने के लिए ये एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उस केस में ये एक्ट करता है एज अ बाइडेंटिएट लिगेंड। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, सीरियम NO3 6-2, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझो। देखो NO3 CO3 की तरह, अब तुम फटाफट से, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे तुम एकदम देख के मत बोल, जैसे 6 देख के हो तो तुम बोल दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो है नहीं, बिकॉज सीरियम साइज बड़ा होने की वजह से सीरियम का ये एक्ट करता है एज अ बाइडेंटिएट लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। ठीक बात, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। सो ऐसे कुछ, इसीलिए इसको तुम स्टार कर देना ये वाले, अगर मेटल का साइज छोटा है तब तो वो मोनोडेंटिएट ही एक्ट करेंगे, मैंने रीज़न बता दिए 2 आपको। बट अगर साइज बड़ा है तो वो क्या करता है, इस क्योंकि देखो अगर ये एंगल कम हो जाएगा तो ये रिपल्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो दूर जाएंगे, तब वो बाइंडिंग जो है वो फिजिबल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे सीरियम के केस में हो रही है। अब देख लो भाई ट्राइडेंटेट लिगेंड, जैसे डाइन, डाइन को बोला जाता है डाया इथिलीन डाइन, डाया इथिलीन ट्राया अमीन। क्या हो गया, डाया इथिलीन मतलब NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, डाया इथिलीन ट्राया अमीन। तो कितनी बाइंडिंग हो गई, साइड 3, तो कैसा हो गया ये, ट्राइडेंटिएट लिगेंड। लेकिन वही सेम बात न्यूट्रल से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज अ न्यूट्रल ट्राइडेंटिएट लिगेंड, चार्ज इज 0। ठीक है, अब देखो ट्राई के बाद देखो तो इसका एनायनिक, कुछ ट्राइडेंटिएट एनायनिक तो मेरे नोटिस में कोई लिगेंड इतना आया नहीं, तो अब नेक्स्ट देख लो तुम टेट्राडेंटिएट। टेट्राडेंटिएट में न्यूट्रल देखो ऐसा ही कुछ, क्या हो जाएगा, डाइन की जगह ट्राइन लिख दे, ट्राइन क्या होगा, ट्राया इथिलीन टेट्रा अमीन। कैसे होगा, NH2 CH2 CH2 NH NH NH2, ट्राया इथिलीन टेट्रा अमीन। Denticity will be 4, but the nature of the ligand is neutral. Similarly पेंटाडेंटेट भी यहाँ पे ऐसा ही होगा ना, एक पेंटाडेंटेट कैसा होगा, एक पेंटाडेंटेट में क्या हो जाएंगे, अमीन क्या हो जाएंगे 5 और इथिलीन क्या हो जाएंगे 4, तो कैसा हो जाएगा वो देखो, ऐसा कुछ दिखेगा ना। तो क्या हो गए, टेट्रा इथिलीन पेंटा अमीन, तो क्या हो गई, डेंटिसिटी कितनी हो गई 5।
पॉलीडेंटेट में लास्ट लिख देंगे हेक्साडेंटेट. हेक्साडेंटेट द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज योर EDTA. क्या चार्ज होता है? 4 नेगेटिव. इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट आयन. इथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट. एसीटेट इज CH3 C double bond O नेगेटिव. तो कितना हो गए बाइंडिंग साइट? 1 2 3 4 5 6. चार्ज इज 1 2 3 4 4 नेगेटिव. हो गई टाइप ऑफ लिगेंड. ठीक है, अब तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं. कौन से डाउट? ये वाले डाउट. साइनो, आइसोसाइनो. देखो, अगर C कोऑर्डिनेटिंग साइट हो मेटल के लिए तो क्या बोला? साइनो. N हो तो क्या बोला? आइसोसाइनो. ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंटिएट लिगेंड. ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हो सकते हैं, बट एट अ टाइम वो सिर्फ अपना एक ही डोनर एटम यूज़ कर सकते हैं. उनको बोलेंगे एम्बीडेंटिएट लिगेंड. मतलब एट अ टाइम एक मेटल के साथ ये और ये नहीं बाइंड कर सकते. तो देखो, इसमें कोई अलग बात नहीं. अभी आपको बोला कि बाइंडिंग के लिए एक से ज़्यादा एटम आपके पास हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्रिक जो कुछ रूल्स हैं, कुछ सिलेक्शंस हैं, वो फॉलो नहीं हो रही है तो वो नहीं हो सकते. जैसे एक मेटल के साथ इन दोनों को बाइंड नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उससे क्या होगी? बहुत ज़्यादा क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उस 3 मेंबर्ड रिंग में. ऑलराइट, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे लिगेंड को क्या बोल दिया? एम्बीडेंटिएट लिगेंड. SCN क्या बोला? थायोसाइनो. और NCS आइसोथायोसाइनो. बात समझ गए? तो ये भी एम्बीडेंटिएट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं. द लिगेंड विच हैव मोर देन 1 donor atom but can bind with only 1 donor atom at a time. These type of ligand are called ambidentate ligand. Similarly, nitro, nitrito. तो ये ध्यान में रखना है इनको. इन सबको क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड. अच्छा, एक और तरह के लिगेंड होते हैं जिसको बोलते हो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, तो नाम से पता चल गया होगा. लिगेंड जिसके पास मोर देन 1 डोनर क्या हो? साइट हो, डेंटिसिटी उसकी मोर देन 1 हो, और वो क्या हो? फ्लेक्सिबल हो अपनी डेंटिसिटी के लिए. मतलब देखो, EDTA का क्या है? डेंटिसिटी 6. पर ज़रूरी नहीं है हमेशा वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही बनाएगा. एक EDTA वो 4 भी बनाता है, वो 5 भी बनाता है. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मिंग, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ लिगेंड कैन एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटिएट लिगेंड. Means a flexible denticity it can use. For example, cysteine. This is chiral amino acid. तो देखो क्या है इसकी डेंटिसिटी? 3 है, बट मोस्टली एक्ट करता है बाइडेंटेट. उस बाइडेंटेट में भी कभी उसकी डेंटिसिटी होती है S और N इन्वॉल्व होते हैं, कभी N और O इन्वॉल्व होते हैं, कभी S और O इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए सिस्टीन, इसको क्या बोला हमने? फ्लेक्सीडेंटिएट लिगेंड. अच्छा, अब लास्ट में मे बी आपको टेक्स्ट बुक में या कहीं पे ऐसा कुछ दिखने को मिले, क्लासिकल टाइप ऑफ लिगेंड एंड नॉन क्लासिकल. तो क्लासिकल टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं जो कन्वेंशनल नॉर्मल आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अपने सिग्मा नॉन बॉन्डिंग यूज़ करते हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे COF नेगेटिव, Cl नेगेटिव, राइट. बट नॉन क्लासिकल होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको यूज़ करे टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद योर मेटल आयन. सो दैट इज़ योर नॉन क्लासिकल. नॉन क्लासिकल के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे फेरोसिन, ऑलराइट, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फेरोसिन, एंड देन जीसस सॉल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो नॉन क्लासिकल है मोस्टली आगे मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको लिगेंड कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर ऑर्बिटल. ठीक है,
वो 4 तरह के होते हैं, तो उसको हम वहाँ पे करेंगे, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, ठीक है, ये सब टाइप, तो वहाँ पे हम नॉन क्लासिकल को पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर व्हाट आर द काइंड ऑफ योर लिगेंड्स एंड व्हाट इज द चार्ज, सो दैट यू विल बी एबल टू find out the coordination number and the oxidation state on the metal ion. So there are some questions that you are going to do it yourself, so I'm going to write it down. So this is the first question. You need to tell me what is the coordination number of cobalt and what is the oxidation state of cobalt. So this is the next complex, which is octahedral ruthenium complex. You need to tell me the coordination number, which is pretty much clear, but the oxidation state on ruthenium. This ligand need to tell me what is the denticity of this ligand. Okay, and try to find out its name. So I had given you such a huge number of ligands, all their names, their charges, so I think this is your homework. You need to tell me the name of this ligand and also the denticity of this ligand. So these are 3 questions for your homework. And in the next lecture, I'm going to start with a very important topic, that is the crystal field theory. I hope so that after this topic, it will be very much clear to you that how to find the oxidation state and coordination number in coordination complexes. So that was why I thought to give the flavor of the basic of coordination chemistry. So I'll meet you soon with the crystal field theory. Thank you so much.